Good morning, friends. A very warm welcome to the ISF. Guys, let's start the session. Let's see what we got for you in today's session. So again, we'll start with the wisdom of Dalai Lama. Now he says that the planet doesn't need more successful people. The planet desperately needs more peacemakers, healers, restorers, storytellers, and lovers of all kind. This is what Dalai Lama is saying here. Now, what does this mean when he says that we don't need more successful people? Look at the definition of success. So, you are dealing with issues like pollution. There is, you can say, Ukraine-Russia war going on. And is this the definition of development and success? That these countries, they are using the science and technology and other means to basically develop their weaponry so that they can start a war or they can fight a war. कि भाई ये लोग किस बेस के लिए, ये किस मोटिव के लिए लड़ रहे हैं, वो चीज यहाँ पे समझना जरूरी है थोड़ा. ओके, सचिन, प्रिया, गुड मॉर्निंग. दैट बेसिकली पोल्यूशन हम किस लिए कर रहे हैं, कैसे हो रहा है पोल्यूशन? बिकॉज वी यूज्ड आवर माइंड. समवन मस्ट हैव बीन सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग अ इंजन जहाँ से हम फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन कर रहे हैं. हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो गया है, हमारा एनर्जी कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है. आवर वे ऑफ लाइफस्टाइल इज लाइक दैट. सो डू यू वांट दैट टाइप ऑफ सक्सेस? एंड देन ही सेज दैट, लाइक, लुक एट द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू mental health. Now you tell me one thing, like, there are multiple surveys which are pointing out that in corporates, big firms, there are many successful people, but they are struggling with their mental health. वो अपनी mental health के साथ struggle कर रहे हैं. तो क्या आपके हिसाब से ये definition है success की? There are people who might end up going ahead with suicide. सक्सेस हो गए, पेपर क्लियर कर लिया, ऑफिसर भी लग गए, फिर एक दिन न्यूज आती है कि इस ऑफिसर ने सुसाइड कर लिया. इज दिस द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? क्या यह है सक्सेस की डेफिनेशन? सो दैट्स व्हाई, कंसीडरिंग ऑल दीज थिंग्स, दलाई लामा इज सेइंग दैट वी वांट दोज हु आर हीलर्स. एटलीस्ट सी व्हाट इज हैपनिंग एट प्रेजेंट. सोशल मीडिया आने के बाद प्रॉब्लम क्या हो गई है? द इंटरेक्शन हैज गॉन डाउन. इंटरेक्शन. नाउ वी आर अ ह्यूमन बीइंग, वी आर अ सोशल बीइंग. हम सोशलाइज करते हैं, हम एक्सप्रेस करते हैं, एंड व्हाइल वी एक्सप्रेस आवर पेन, इट रिड्यूसेस द स्ट्रेस दैट इज देयर. यहां पे जो स्ट्रेस होगा वो कम हो जाता है. सो ये पर्सपेक्टिव है जो समझना है आपको. आज सोशल मीडिया है, एक स्माइली भेज दिया आपने, चाहे वो, लाइक, दैट पर्सन माइट बी फीलिंग रियली बैड इन हिज लाइफ और हर लाइफ, ही माइट बी फेसिंग लॉट ऑफ इश्यूज, बट स्माइली भेज दिया. यू शुड, लाइक, इज दिस द ट्रू पोर्ट्रेयल ऑफ द मेंटल हेल्थ और द, यू कैन से, सिचुएशन ऑफ दैट पर्सन? सो ये आज की डेट की प्रॉब्लम है, एंड दैट्स व्हाई टू लुक इनटू दीज प्रॉब्लम्स वी नीड people who are healers. We need people who can listen to others. आप किसी की बात सुन लो, आधा प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाती है. The half of the problem will be gone when we listen to someone. There are people who will be looking for some audience कि भाई हम express करें किसी के पास जाके. But our lifestyle is like that. We are so busy with our, you can say, money making, और हम उन चीजों में बहुत busy हो गए हैं, and we are moving away from the true spirit of humanity. We are, you can say, losing the compassionate behavior. So वो सारी चीजें हैं जो हमें वापस लेके आनी होगी if we seriously want to deal with this particular problem here. Clear है? So these are the words of Dalai Lama. Now we will be looking into Shiv Sena dispute. थोड़ा और देख लेंगे आज क्या है. Indian contribution to global growth, Sinthan Pass, Mohiniyattam, protect the power of little man. Okay. India to become a biodiversity champion. खिलाड़ी डिस्कवरी, संगम एज की डेट पीछे करने का कुछ एक चल रहा है, देखते हैं. फ्रेंच ट्रूप्स विड्रॉन फ्रॉम बुर्किना फासो एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी. सो लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर, यू कैन से,
session here and we'll start with Shiv Sena dispute which is still going on. So yesterday मैंने आपको बताया था the Shiv Sena, the Uddhav Thackeray, he is going to contest it in the court. Now you need to understand, Election Commission of India, it is the authority to decide disputes related to the political parties. Political parties के जो भी dispute हैं, those things are handled by Election Commission of India. Now the point is this, Election Commission has clarified this thing that 55 MLAs were there and out of them 76% they wanted to be with Eknath Shinde. So this is the reason that Election Commission said that the real Shiv Sena is the one which is there with Eknath Shinde. This is the present situation here. Clear? अच्छा, अब बात इसके अंदर ये आती है कि yesterday I told you about the national party. Now let's look into the definition of the state party. So state party के लिए क्या क्या criteria है? This is all related to your prelims. Prelim centric है ये absolutely. क्योंकि जुडिशरी ने यहाँ पे इंटरवीन करने से मना कर दिया है. जुडिशरी हैज सेड दैट ओके, इनफ इज इनफ, वी हैव ऑलरेडी कंक्लूडेड दीज थिंग्स, देयर इज नो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूइंग दिस पर्टिकुलर इशू फर्दर. इसका कोई मतलब नहीं बनता कि हम आगे जाके भी इसी मुद्दे को उठाते रहें. सो नाउ स्टेट पार्टी की डेफिनेशन पे चलेंगे. इफ अ पार्टी सिक्योर्स 6% ऑफ द वैलिड वोट्स पोल्ड इन द स्टेट इन अ जनरल इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इन एडिशन टू दिस इट विन्स 2 सीट्स, 2 सीट जीत के आनी है आपको, 6% वैलिड वोट किसी भी असेंबली इलेक्शन में. क्लियर है? सेकंड क्राइटेरिया इज दैट इफ इट सिक्योर 6% ऑफ द वैलिड वोट्स पोल्ड इन द स्टेट इन जनरल इलेक्शन टू लोकसभा, या तो लोकसभा के इलेक्शन में 6% वोट ले लो प्लस 1% सीट इन द लोकसभा फ्रॉम द स्टेट. उसी स्टेट से आपकी जो है एक लोकसभा की सीट आनी चाहिए, उसी स्टेट में जो जितनी टोटल वोटिंग हो रही है लोकसभा इलेक्शन में उसका 6% उस पॉलिटिकल पार्टी को जाना चाहिए. क्लियर है? देन द नेक्स्ट क्राइटेरिया इज दैट इफ इट विंस 3% ऑफ द सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली में 3% सीटें आ गई, देन दिस विल बी द केस फॉर, यू कैन से स्टेट पार्टी का स्टेटस मिल जाएगा. चलिए, नाउ देयर आर 2 एडिशनल क्राइटेरियाज. अब देखिए ये 2011 में इट वाज एडेड. इट सिक्योर्स 8% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स पोल्ड इन द स्टेट एट अ जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा. अगर लोकसभा इलेक्शन में उस किसी एक स्टेट से आपको उस स्टेट में जितने वोट डले हैं उसका 8% अगर मिल गया तो भी आपको स्टेट पार्टी का स्टेटस मिल जाता है. देन वी हैव द अबव क्राइटेरिया व्हिच सेज दैट इट मींस एटलीस्ट 1 सीट इन लोकसभा फॉर एवरी 25 सीट्स और एनी फ्रैक्शन अलॉटेड टू द स्टेट. इस प्रोपोर्शन में, इस रेशियो के अंदर अगर वो किसी स्टेट से जो है सीट्स जीत के आती है, देन इट विल गेट द status of state party from that particular state. Clear? So this is how state party is decided. Now please have a look over this particular question. So again UPSC आजकल थोड़े आपके क्या बोलते हैं, लर्निंग बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है. वो जानना चाहता है कि आपकी नॉलेज कितनी है, आप इसको कितना अप्लाई करना चाहते हो. कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये. इट सेज दैट द मेन एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मेन एडवांटेज क्या है. सो first statement, it is saying executive and legislative they work independently. Is it the main advantage कि दोनों अपना अपना काम करेंगे, separation of power हो जाएगा? No. And in India, like in India we do have overlapping. It provides continuity of policy and is more efficient. Continuity of policy तो होती नहीं है हमारे यहाँ पे because government change हो सकती है. Even the government can fall if a particular government is losing the majority in the legislature. यही तो है ना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कि वोटर होगा, वोटर विल चूज देयर लेजिस्लेचर और लेजिस्लेचर में से हमें मिलेगा आपका एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट, सरकार. ठीक है? तो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर आएंगे यहाँ पे. लेजिस्लेचर में हमारे पास लोकसभा है, क्लियर, राज्यसभा भी है. ओके, सो बट पीपल आर डायरेक्टली चूजिंग द लोकसभा. हम तो डायरेक्टली लोकसभा चूज करते हैं एंड द प्राइम मिनिस्टर इज, यू कैन से, इलेक्टेड फ्रॉम द लोकसभा. लोकसभा में मेजोरिटी आपकी होनी चाहिए, उससे ही आप सरकार बना सकते हो. सो दिस अरेंजमेंट इज देयर. ठीक है? अब लोकसभा में आपकी मेजोरिटी गिर जाएगी तो सरकार भी गिर जाएगी. तो ये एक बेसिक फंडा है जो ध्यान रखना है. थर्ड स्टेटमेंट, इट इज सेइंग द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर.
दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मोदी जी को जवाब देना पड़ता है पार्लियामेंट में आके, ओपोजिशन भी है, राहुल गांधी सवाल करेगा कि भाई क्यों किया, कैसे किया, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ दिस मेक्स द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। यहां पे आपकी सरकार हो जाती है अकाउंटेबल। सो दिस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इट अश्योर्स अकाउंटेबिलिटी। अब दूसरा देख लो प्रेसिडेंशियल के अंदर क्या है। देखिए प्रेसिडेंट एक बार बन गए, यूएस की अगर हम बात करें, सो इज गोइंग टू बी देयर फॉर 4 years। कोई मेजोरिटी माइनॉरिटी का सिस्टम नहीं है वहां पे। इम्पीचमेंट का जरूर होगा, लेकिन वो एक्सेप्शनल केस में होगा, बट इफ ही इज देयर देन ही इज गोइंग टू बी देयर फॉर 4 years। सो दिस प्रोविजन इज देयर इन यूनाइटेड स्टेट्स। क्लियर है? हमारे यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, हमारे यहाँ पे अकाउंटेबल होता है, सवाल जवाब देना पड़ता है, प्रोसीडिंग्स चल रही होती है। This is what we have. Now we'll move to the next, you can say, news that is talking about India remains a bright spot in and to contribute 15% of the global growth in 2023. This is what IMF is pointing out, that we continue to remain a relatively bright spot. Okay, so globally things are not moving in a right direction in the sense that सब struggle कर रहे हैं, सारी economy struggle कर रही है, लेकिन India जो है अच्छे से काम करेगा। And they are saying that, data देखिए क्या कह रहे हैं, like data is that India alone will contribute somewhere around 15% of the global growth in 2023। इतनी जबरदस्त हमारा एक रोल है ग्लोबल ग्रोथ के अंदर, एंड दैट्स व्हाई द होल वर्ल्ड इज लुकिंग अप टू इंडिया। आज की डेट में दे आर लुकिंग फॉर अ डेस्टिनेशन टू इन्वेस्ट, एंड इंडिया इज दैट प्राइम स्पॉट बिकॉज दिस इज व्हाट वी आर ऑफरिंग। 15% ग्लोबल ग्रोथ सिर्फ इंडिया से आएगी, ये तो कमाल की खबर है। देयर कांट बी एनीथिंग बेटर देन दैट। So you should be very, you can say, like proud of this achievement. Now they are saying that India is going to retain the high growth rate, 6.8% का हमारा high growth rate रहने वाला है। इतने डाउन ग्लोबल सिनेरियो में भी हम इतना ग्रोथ रेट रजिस्टर कर रहे हैं, दिस इज गुड। देन फास्टेस्ट ग्रोथ रेट अमंग द मेजर इकोनॉमीज, एंड देन देर आर रीजन्स मेंशन, भाई ऐसा क्या किया इंडिया ने कि हम ये सारे जो हो अचीवमेंट्स है ये हम ले रहे हैं आज की डेट में। Then it says that we have digitalized our economy. So when we are digitalizing it, so basically new opportunities are coming in India. नई अपॉर्चुनिटीज आती हैं इंडिया के अंदर। लुक, जोमैटो, ओला, उबर, आजकल तो पेटीएम। सो दिस इज द पावर ऑफ डिजिटल इकोनॉमी। देन लुक एट द फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ आवर गवर्नमेंट हैज maintained this thing that we will not spend money beyond the limit that is there in FRBM। और हमारा कोशिश ये रहेगी कि FRBM के अंदर जो टारगेट्स हैं हमारे फिस्कल टारगेट्स, ओके, those targets will be achieved। मेजरली वो सारे टारगेट यहाँ पे अचीव होंगे। So that's one point here। Then the present budget, it signals the commitment to fiscal consolidation। गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग एक्स्ट्रा बाउंड कि भाई इलेक्शन ईयर है तो हमें इस टाइम पे ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए, लोगों के हाथ में पैसा दो, सब्सिडी दो, इवन इफ इट इज नॉट फ्रूटफुल। गवर्नमेंट इज नॉट ब्लाइंडेड बाय दैट। दिस ईयर वी हैव एक्सपीरियंस सब्सिडी कट इन सर्टेन सेक्टर्स, कुछ एरियाज में तो हमने सब्सिडी कट भी कर दिया है। सो दिस शोज दैट गवर्नमेंट इज कमिटेड विद द फिस्कल डिसिप्लिन। अब देखिए फिस्कल डिसिप्लिन जब आप मेंटेन करते हो तो उसका क्या बेनिफिट होता है। वन इज दिस, इट इंप्रूव्स द क्रेडिबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी इन द आई ऑफ इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर को ये लगेगा कि भारत सरकार इंटरफेयर नहीं कर रही है, इंडियन इकोनॉमी एक अपॉर्चुनिटी है, ग्रोथ रेट भी अच्छा करेंगे और दिस इज द टाइम टू इन्वेस्ट देयर। दिस इज व्हाट दे विल थिंक एंड द इन्वेस्टमेंट विल बी फैसिलिटेटेड। क्लियर है? Then you have to understand, then it is pointed out that we are investing in green economy as well। अब देखिए ये ग्रीन इकोनॉमी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिन्यूएबल्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, वो हमारा फोकस है ना। एक तो इट विल हेल्प अस इन रिड्यूसिंग द कार्बन एमिशन, एंड द सेकेंड पार्ट इज दैट इट इज गोइंग टू क्रिएट न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज बिकॉज इट्स ऑल टुगेदर अ न्यू डोमेन। एक नई डोमेन आप खोलोगे, एंड the point is this, we cannot undermine the export potential of this particular idea। तो यहां पे इंडिया में अगर हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सोलर पावर की या फिर किसी और विंड इक्विपमेंट्स की, विंड पावर इक्विपमेंट्स की,
So definitely this offers us a potential that we can export it to the other countries. So we have to look into this aspect. Clear? So this was the major, you can say, thing here. Now there was this news, this photograph which is there on the front page. अब ये photograph है और ये Synthon Pass की photograph है. सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए this Synthon top, Synthon Pass, it is one of the major, you can say, tourist destination in Jammu and Kashmir. ओके और ये पड़ता है आपका अनंतनाग एरिया के अंदर. इट फॉल्स इन दैट एरिया एंड इट इज रीओपन्ड. ओके बेसिकली इट कनेक्ट्स द चेनाब वैली टू कश्मीर. सो कश्मीर को जोड़ता है ये इसके साथ, चेनाब रिवर के साथ, चेनाब वैली को जोड़ता है. सो दिस इज व्हाट वी हैव. क्लियर है? ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, न्यूज में आ गया, प्रीलिम्स के लिए आपको याद रखना है. नाउ डोंट कन्फाइन योरसेल्फ ओनली फॉर टू दिस इंफॉर्मेशन. दिस इज द होमवर्क. ओके गो एंड डू सर्च अबाउट अदर passes that are there, other passes at least in Jammu and Kashmir. बताइए बारालाचा पास, चांगला पास, खारदुंगला पास, जस्ट फिगर आउट अबाउट दोज थिंग्स. क्लियर है? सो वो आपको करना होगा. विल मूव टू द नेक्स्ट. नाउ मोहिनीअट्टम आर्टिस्ट कनक रेले, नाउ शी इज नो मोर. ओके so we will be looking into some aspect of Mohiniyattam as this is there in today's newspaper. Now Mohiniyattam, like it's a dance drama, basically it is associated, it's a classical dance drama associated with Kerala, and it has its underlining in Bharat Muni's Natya Shastra. There is this additional, you can say, point associated, that is it was traditionally performed by women. पहले तो होता था. और कथकली की अगर हम बात करें, कथकली को ट्रेडिशनली देखोगे तो कथकली यूज्ड टू बी परफॉर्म्ड बाय मेन. क्लियर? अब आज की डेट में ठीक है, वुमेन मैन दोनों यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट ट्रेडिशनली वुमेन पार्टिसिपेट करती थी. एंड वन ऑफ द अर्लीस्ट रेफरेंस टू दिस मोहिनीअट्टम इज व्यवहार माला. व्यवहार माला, which is a 16th century text on Indian jurisprudence authored by Majhamangalam Narayanan Namodri. So he created this Vyavahar Mala. In that Mohiniyattam has been referred. Clear है? Absolutely prelims related content. Now please pay attention. Though this was the question that UPSC did ask, it's a sort of a old question. It is saying गरबा गुजरात का है, बिल्कुल है. यक्षगान कर्नाटका का है. मोहिनीअट्टम हमने देखा यह भी केरला का है, and it is not associated with Odisha, so this would have been wrong, and the right answer will be, you can say, C. C इसका सही आंसर है. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं सीधा. Protect the power of little man in democracy. So basically it is like Dushyant Dave he is talking about that ordinary man, his power, his voice should be protected. Now the point is this, what has happened at present, look at the challenges that we are dealing right now. देखिए आप समझिए, all these things are important, means your standard of living, your education, your income, it plays important role in deciding whether you will be empowered citizen or not. ये बहुत जरूरी है, because if you have resources, then only you can think about, you can say, challenging the government, you can think about raising the voice. If you have education, if you have awareness, then only you can be assertive about your rights. तभी तो आप अपने rights को लेके assertive हो सकते हो, otherwise नहीं होगे अगर आपको पता ही नहीं होगा तो. Just think about it. Suppose if a labor is there, okay, मजदूर की बात कर रहा हूं जो दिन रात ईंटों के भट्टों पे काम कर रहा है, मकान बना रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है. Now he is struggling to meet his 3 times meal. There could be a circumstance जब काम नहीं होगा, लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आ गई, तो वो तो स्ट्रगल में अपना टाइम लगाएगा ना.
he won't be busy with other things, he won't be assertive about कि मेरे को हक दो, मैं केस करूंगा। वो ये सब नहीं होता है, फिल्मों में होता है ये सब, हकीकत में ये सब नहीं होता है। क्लियर है? और यहां पे ही ये मेजर पॉइंट है दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर चैलेंजेस दैट वी हैव एंड दोज चैलेंजेस आर इंटरलिंक्ड विद द पॉलिटिकल चैलेंजेस। तो मतलब अगर हम बोलेंगे कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, नाउ डेमोक्रेसी फर्स्ट ऑफ ऑल you have to define it. B.R. Ambedkar defined it in 3 major ways. One is, you can say, political, economic, okay, social. ये तीनों साथ में काम करेंगे। आप वोटिंग राइट दे देते हो, हर एक को वोट देने का आपने वो दे दिया, सो दैट्स वन पार्ट है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आ गई। You have to raise the income of the people. If we seriously want that there should be economic democracy, लोगों की इनकम तो बढ़ानी पड़ेगी ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बढ़ाना पड़ेगा। So looking into these things, now he is pointing out about the challenges that the Indian democracy is facing. So right now poverty it is prevailing in India. The inequality is increasing, rich और poor के बीच में inequality बढ़ रही है। Okay, look at the situation related to rule of law. Like 2-3 days back there was this incident where 2 people, they were murdered, like their dead body was found in a burnt jeep. एक कार के अंदर जो है SUV के अंदर उनकी डेड बॉडी मिली है जली हुई। ओके, recent incident, we know that mob lynching भी हुई है इंडिया में। So it shows the state of rule of law and governance. You can say, we definitely cannot say it will be an example of good governance. जहाँ पे corruption होता है वहाँ पे good governance हो ही नहीं सकता। So this is one thing. We are polarized somehow, communal polarization ज़्यादा है, caste lines के ऊपर भी polarization हो गया है। Okay, and look at what happens is that we have at present weak opposition. Opposition तो कहीं दिखता ही नहीं है आपके यहाँ पे। This is how your parliament is acting. The quality of debates have gone down in parliament. क्या डिबेट करते हैं पार्लियामेंट में? नारेबाजी चल रही होती है, PM अडानी भाई भाई, इस तरह की चीजें चल रही होती है। Is there any concrete discussion? क्या कुछ concrete discuss किया उन्होंने? क्या कोई law बनाया? ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पे। And not only that, subsequently there is this trouble that is going on that we have weakened our institutions. हमने अपने institutions को weak किया है, including the Supreme Court. कोर्ट आजकल बिजी है, overburdened है। आपका जजमेंट कब आएगा? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। कोई डेटरेंस नहीं है, जो क्रिमिनल है उसको डर नहीं है, क्योंकि केस चलेगा 20 साल 25 साल, छूट जाएंगे, बीच में छुट्टी बनाने के लिए जेल चले जाएंगे, छुट्टी बना के वापस आ जाएंगे। इस टाइप का दिस इज द थॉट प्रोसेस दैट दे आर हैविंग राइट नाउ। एंड लुक हाउ इंस्टीट्यूशंस आर बीइंग यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू टारगेट द ऑपोजिशन। CBI का कैसे यूज हो रहा है, ये सारी चीजें हैं। एंड ऑल दीज आर ट्रबल फॉर योर डेमोक्रेसी। यहां गवर्नेंस नहीं, वहां डेमोक्रेसी कैसे हो पाएगी? सो दिस इज हाउ इट इज। एंड इन दिस केस opposition is the necessary evil, because power corrupts and absolute power corrupts absolutely. The point is this: opposition is going to find out what are the, is there any corruption going on in the system, is there any case of maladministration, क्या कोई maladministration का केस चल रहा है, क्या कुछ गड़बड़ चल रही है? हमें कौन बताएगा, जनता को कौन बताएगा? ये पार्लियामेंट की डिबेट से पता लगेगा। ये पब्लिक अकाउंट कमेटी जब किसी भी सरकारी फंक्शनिंग को, डिपार्टमेंट को स्क्रूटनाइज करेगी, कोई रिपोर्ट स्क्रूटनाइज करेगी CAG की, सो दे विल एक्सपोज दीज थिंग्स हियर। बट कुछ भी ऐसा नहीं होता है। क्लियर है? एंड अदर मेजर पॉइंट इज दिस: इन इंडिया यू हैव द मेजर चैलेंज इज टू मेक सिटीजन अवेयर दैट व्हाट्स देयर ड्यूटीज आर, व्हाट्स देयर राइट्स आर। आप अपने राइट्स को क्लेम करो, कैसे क्लेम करोगे वो भी आपको बताना पड़ेगा। क्लियर? दैट पीपल आर नॉट जस्ट बायस्टैंडर्स। सी, बायस्टैंडर की तरह काम नहीं करना आपको। डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें, ओके, ये समझना है आपको, इट इज नॉट अ स्पेक्टेटर्स स्पोर्ट। क्लियर? ये बात समझे, ये कोई क्रिकेट नहीं चल रहा है कि 11 लोग खेलेंगे, आप बैठ के देखोगे, वो स्टेडियम के अंदर ताली बजाओगे कि अब तो जब तक मैच चलेगा, जब तक सरकार चलेगी 5 साल, हम तो सिर्फ बैठ के गेम देखेंगे। इट इज नॉट अ स्पेक्टेटर स्पोर्ट।
So in democracy, people, they have to be an active participant. उनको एक्टिव पार्टिसिपेंट तो बनना पड़ेगा ना यहां पे, and this is the critical element here. So this is one thing that should be focused on. आगे बढ़ते हैं. Just this particular question is there. Now out of the following statement, choose the one that brings out the principle underlying the cabinet form of government. कि हमने cabinet form of government जो है वो क्यों choose की. Clear? So right answer to this is a mechanism of parliamentary democracy for ensuring collective responsibility of the government to the people. This is the answer here. कि एक कैबिनेट है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा लोगों को. लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होता है ना, तो इनडायरेक्टली जनता को रिस्पॉन्सिबल हो गया. ये मेजर पॉइंट है इसमें. देन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज द वन. क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम? क्या है इसके अंदर ऐसा कि ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड? नहीं. द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट. बिल्कुल सही बात है भाई. आपकी लोकसभा में अगर मेजोरिटी गिरेगी तो सरकार जाएगी ना. ओके. So if a political party is losing the majority, or you can say a government is losing the majority, council of ministers, they are losing the majority, the government will fall. It is primarily there in Lok Sabha. So this statement is going to be right. Clear है? आगे बढ़ते हैं. India can become a biodiversity champion. See, right now you have to understand, in Montreal, in this conference, there was decision that was taken by multiple countries. One is that halt and reverse. Halt in the sense, whatever biodegradation that is going on, you have to halt it, and then you have to reverse this. Make sure that the damage that has been done, you have to fill for that damage. उस damage के लिए आपको पूरा उसे cover up करना पड़ेगा. ये इसके अंदर point बताया गया है. So it is saying that like halt and reverse, this was the basically agreement that was concluded in the Montreal conference. Clear है? अच्छा, अब ये कहते हैं कि इसके अंदर एक और डिसीजन लिया. By conserving 30% of the world's land and 30% of the world's ocean by 2030, and this is known as 30 into 30 pledge. ये 30-30 pledge बोल रहे हैं. Clear? 30% आपको वर्ल्ड का लैंड बचाना है, 30% ओशन बचाना है 2030 तक, और इसको 30-30 प्लेज बोल दी. नाउ लुक एट इंडिया सिनेरियो हियर. वी हैव अ 27% ऑफ द ग्लोबल, यू कैन से लैंड, सॉरी 27% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन. हमारे पास 27% ग्लोबल पॉपुलेशन है एंड 27% ऑफ द ग्लोबल एरिया इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. सो द पॉइंट इज दिस, अगर हम लोग कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो ये जो 30 into 30 की प्लेज का गोल है, इट विल नेवर बी रियलाइज्ड. इट विल बी डिफिकल्ट टू रियलाइज दैट गोल. वो कभी भी पूरा नहीं होगा. तो इंडिया शुड बी देयर एज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट. नाउ ऑलरेडी गवर्नमेंट इज पुटिंग अ प्रायोरिटी. दीज थिंग्स आर ऑन गवर्नमेंट्स प्रायोरिटी. सो यूनियन बजट, इट मेंशन्ड ग्रीन ग्रोथ एज वन ऑफ द 7 प्रायोरिटीज. देन वी हैव ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम. It has the objective to incentivize environmentally sustainable and responsible action by companies, individuals and local bodies. So they want participation from all. और ये बात समझिए आप, आज की डेट में मोदी जी क्या बात कर रहे हैं? लाइफ मिशन. क्लियर? ये निकाला मोदी जी ने, दैट इज लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट. क्यों हमने ये किया है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट? द पॉइंट इज दिस, विदाउट द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, दीज गोल्स कैन नेवर बी रियलाइज्ड. आप कोई भी एफर्ट उठा के देख ले. सी, हम बोलते हैं रिड्यूस करें, रीयूज करें. हु इज गोइंग टू रीयूज? इट्स पीपल. इफ इट इज देयर इन देयर कल्चर, इन देयर माइंडसेट, दे विल बी गोइंग अहेड. रिड्यूसिंग द कंजम्पशन, रिड्यूसिंग द वेस्टेज, जनता को ही एफर्ट करना है ना, तो उनको साथ में लेके चलना पड़ेगा. इंडिविजुअली गवर्नमेंट्स कैन नॉट अचीव दीज टारगेट्स. बिना जनता के ये टारगेट अचीव नहीं होने वाले हैं. क्लियर? सो देयर इंडिया इज गोइंग टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल. देखिए 17% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन. अगर 17% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन एफर्ट नहीं करेगी तो फिर कैसे आपका टारगेट अचीव होगा? क्लियर हो गया? दैट्स द पॉइंट हियर. नाउ
This is at present 17%, but there will be a time then 20% of the global population, 1/5 of the global population will be India. ऐसा होने वाला है ये टाइम आने वाले कुछ सालों में. Now government has run multiple initiatives. So one is MISHTI, Mangrove Initiative for Shoreline Habitat and Tangible Incomes. So one you have to understand here, mangroves are important. क्यों? First of all, they are biodiversity rich. बहुत biodiversity rich है. And they do have the potential. बहुत potential है. Mangroves कैसे help कर सकता है आपकी economic growth के अंदर? Why I am saying this? First of all, mangroves are limited है, and they can be portrayed as a tourist sport. अब मुंबई जैसी जगह में जहां पे मैंग्रोव्स आपको थोड़े बहुत नजर आ जाएंगे, लेकिन ग्रीन वेजिटेशन नहीं मिलती है, जमीन ही नहीं है, जमीन नहीं है तो ग्रीन वेजिटेशन नहीं होगी. So there are only few areas. Now those areas can be developed as a tourist sport. We can look into those things. It has the potential here. Then government took another initiative, Pradhan Mantri Program for Restoration, Awareness, Nourishment and Amelioration of Mother Earth. The basic idea is this: it will contribute in reducing the inputs of synthetic fertilizer and pesticides in our agriculture. Now what happens is that these chemical fertilizers, they will enter the water bodies. ये water bodies में enter करेंगे, it will pollute the water body. This is what it is going to be. तो यहां पे water body आपकी pollute हो जाएगी. Clear है? Next is Amrit Dharohar scheme. Now Amrit Dharohar scheme directly mentions our biological wealth. It says that it will encourage optimal use of wetlands and enhance biodiversity, carbon stock, ecotourism opportunities and income generation for local communities. ये है अमृत धरोहर. These initiatives हो गए, ये PM प्रणाम हो गया, अमृत धरोहर हो गया, मिष्टी हो गया. Then this is one example that how government is taking up these things seriously. So हैदरपुर के अंदर like एक रामसर wetland है and it's located in UP. So government cleaned it. उसकी cleanliness करना, वो these are the things that government is prioritizing right now. So ये सारे चीजें important है हमारे लिए. Basically जब आप wetland को conserve करते हो, it will help us in recharging the groundwater as well. और specifically those areas are critical which are around the urban centers. Because what has happened, हमने urbanization, industrialization के चक्कर में सारा पानी जो है हम consume करते जा रहे हैं. ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होता बिकॉज आपके सिटी के अंदर हर जगह कंक्रीट का जंगल है. वी हैव डन द कंक्रीटाइजेशन ऑफ द स्पेस. देयर इज नो ओपन स्पेस फ्रॉम वेयर वाटर वेयर परकोलेट डाउन. ऐसा ओपन स्पेस ही नहीं मिलता आपको. सो इट क्रिएट्स दैट ट्रबल हियर. नाउ देयर आर सम सॉल्यूशंस दैट आर मेंशन्ड कि क्या करना है. पहली बात, साइंस बेस्ड एंड इंक्लूसिव मॉनिटरिंग प्रोग्राम आर टू बी फैसिलिटेटेड. साइंटिफिक लाइंस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके we have to look for the solutions. Clear hai? Then new missions and programs, they should be effectively put in place. और इसके अंदर अब देखिए बात क्या है, यूनियन एंड स्टेट्स they should work as a team. And if there are differences, we won't be able to settle or solve these disputes. And not just the union and state, I would say local governments should also be included in that. अब देखो दिल्ली के अंदर अगर दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और यूनियन गवर्नमेंट आपस में लड़ते रहेंगे या दिल्ली गवर्नमेंट की नहीं बन रही है, तो कैसे ये गोल रियलाइज होगा? This is a major point here, and here the government is, you can say, going ahead with National Mission on Biodiversity and Human Well-being. It is already being approved, okay, and Prime Minister's Science, Technology and Innovation Advisory Council is there. तो उन्होंने इसे अप्रूव भी कर दिया है. And today we are living in an era where we talk about One Health approach. आज की डेट में आप One Health approach को लेके चल रहे हो. That is, everything is interlinked. The wildlife and human health is interlinked. The environment and human health, they are interlinked. You cannot separate them. ऐसा नहीं होगा कि अगर आपको लंग्स इन्फेक्शन है और आप दवाई खा लोगे ठीक हो जाओगे अगर बाहर एयर पोल्यूशन हो रहा होगा. ऐसा नहीं हो सकता. एयर पोल्यूशन भी कम करना पड़ेगा, दवाई भी खानी पड़ेगी. So both have to be done.
So this is critical part here. Now let's move to the next, you can say, news that is talking about the discovery in Kiladi. So basically Kiladi is a place in Tamil Nadu, and the recent discovery that has been there, it shows that the Sangam age, देखिए अभी हम Sangam age की क्या एक tentative date लगा के चलते हैं. So we conclude that as per NCERTs, it started in 3rd century BC and it was there till 3rd century AD. Clear है? तब तक संगम एज बोल देते हैं हम कि 600 साल तक रही. But this Kiladi discovery, it is further taking this Sangam age to backward. Okay, और पीछे जा रही है. Now it provides the crucial evidence of understanding the missing links of the Iron Age, okay, to the early historic period, that is 6th century BC to the 4th century BC. जो मिसिंग एज है उसका ये आंसर देती है किलाड़ी, एंड इट इज टेलिंग दैट संगम एज इससे थोड़ा पीछे जाता है जितना हम इससे सोच रहे हैं. दिस इज वन थिंग दे आर मेंशनिंग हियर. क्लियर है? एक्सकवेशन यू हैव पुश्ड द संगम एज फर्दर बैक, एंड academics they are saying this, they describe this as a continuation or part of Wagai Valley civilization. Clear? हमारे नॉर्थ में इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड साउथ में वगई वैली सिविलाइजेशन. इट इज ऑल्सो सेड दैट कि भी वगई वैली सिविलाइजेशन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन दे वर ग्रोइंग पैरेलली. एक दूसरे को जानते नहीं थे लोग, लेकिन ये अलग अलग एग्जिस्ट करते थे एंड दे वर फ्लरिशिंग. क्लियर? फाइंडिंग्स हैव शोन दैट लाइक इनवाइटेड कंपैरिजंस विद इंडस वैली एंड द वगई वैली, दो देयर वाज अ गैप ऑफ, देयर इज स्टिल अ गैप ऑफ 1000 years, 1000 साल का गैप है, लेकिन आप देखिए दो सिविलाइजेशन कैसे फ्लरिश कर रहे हैं, एक दूसरे को जानते ही नहीं. ठीक है ना? सो दिस इज वन मेजर डिस्कवरी हियर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज व्हाई हैव फ्रेंच ट्रूप्स दे वर विड्रॉन फ्रॉम बुर्किना फासो. क्लियर? सो यू मस्ट बी नोइंग दिस, इन बुर्किना फासो इंसर्जेंसी, और यू कैन से terrorism was flourishing. Now French, they sent their forces to basically help the government in Burkina Faso. Burkina Faso के अंदर सरकार, फ्रेंच गवर्नमेंट ने उनकी गवर्नमेंट की हेल्प करने के लिए जो है अपनी फोर्सेस वहां पे डिप्लॉय कर रखे थे. क्लियर है? अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है यहाँ पे, डिसीजन हैज बीन टेकन दैट द फ्रेंच फोर्सेस विल बी विड्रॉन. अब वहां पे रिलेटिव पीस हो गया है, शांति आ गई है, सिविल वॉर लाइक सिचुएशन नहीं है, तो फिर वो वापस बुला लेंगे. Now major point is this, you have to see things from two perspective. One is from the international relations, और उसके अंदर भी हम फिजिकल मैप देखेंगे यहाँ पे, फिजिकल प्लस द पॉलिटिकल मैप. क्लियर? IR को थोड़ा ज्योग्राफी के साथ लिंक करना होगा, बिकॉज यूपीएससी कैन आस्क मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन, सो यू शुड बी नोइंग इट. जो पॉलिटिकल इवेंट हुआ कि फ्रांस अपनी फोर्सेज वहां से वापस बुला रहा है, वो तो हमने पता कर लिया. Now Burkina Faso, what are the neighboring countries that are there? Neighboring countries कौन से हैं बुर्किना फासो के? So in the north you have Mali, then Cote d'Ivoire, okay, so this is there, Ghana is there, Togo is there, Benin is there, and from the right side Niger is there. So these are the neighboring countries of Burkina Faso. Now there is this physical map associated here, please pay attention. This is the Sahel region. ये साहेल रीजन है, ये वेजिटेशन का टाइप है एक. बेसिकली इट्स अ ट्रांजिशन. ट्रांजिशन किसके बीच में? Here we know that desert is there, and here we know that savanna. So from desert type to savanna type, there is this region called Sahel. It's a transition. Clear hai? Again a prelims related you can say concept. Now it means that we need to be knowing which all countries will fall in that Sahel region. So Senegal is there, Mauritania is there, Mali is there, Burkina Faso is the one, Niger is the one, Nigeria से भी जा रहा है, Chad is the one, Sudan is the one. Clear? So Cameroon, थोड़ा एरिया कैमरून का भी आ गया. So basically these countries they fall in the Sahel region. Sahel region क्या है? Transition between desert and the savanna. Clear? चलिए, we'll move to the next news. It is saying that 1 children above 6
only the children above 6 must get the class 1 admission. This is what government instruction is about. देखिए, we used to have old education policy. Now old education policy used to say that 5 years plus they should get admission is the first class. एक 5 साल से बड़ा बच्चा जो है वही सिर्फ फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेगा. ये पुरानी वाली एजुकेशन पॉलिसी की जो है इंस्ट्रक्शन थी. नाउ इफ वी लुक इनटू द प्रेजेंट इंस्ट्रक्शन, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, टॉक्स दैट 6 years, 6 साल से बड़ा बच्चा जो है फर्स्ट क्लास में एडमिशन ले सकता है. अब ये ऐसा क्यों डाला, 5 से 6 क्यों किया? सी, वी आर टॉकिंग अबाउट द होलिस्टिक डेवलपमेंट एट प्रेजेंट. हम इन चीजों को ब्रैकेट्स में नहीं रख सकते हैं. एंड द न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन, इट इज डिफरेंट. पहले क्या होता था, 10+2. इस तरीके से हम अपनी लर्निंग को डिवाइड करते थे कि क्लास 1 में एडमिशन लो, 10वीं तक पढ़ो, उसके बाद 11th 12th हो जाती थी. बट वी हैव फर्दर divided it, and the new, you can say, arrangement is 5+3+4. That is from class 1st to 5th there is a learning module that is there. Then from 5th to 8th there is this learning module that will be provided, and from 6th to 12th. So in this way we are dividing our, you can say, curriculum and other things. जो लर्निंग एज है वो हम इस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं. नाउ द पॉइंट इज दिस, व्हाट गवर्नमेंट इज थिंकिंग व्हेन वी टॉक अबाउट होलिस्टिक, यू कैन से, लर्निंग, चाइल्ड शुड नॉट बी फोर्स्ड टू सिट फॉर एनी क्लास if the mental age, okay, mental age I am talking about, the mental growth is not up to that level. और यहां पे फोकस क्या है, गवर्नमेंट का फोकस आज की डेट में प्राइमरी एजुकेशन पे भी है. प्री स्कूलिंग, नर्सरी, केजी, उसके अंदर भी आपको प्रॉपर लर्निंग एनवायरमेंट इकोसिस्टम मिलता है. सो इट इज एक्सपेक्टेड दैट लाइक चाइल्ड विल बी देयर, मींस 3.5 या 4 years की एज में वो नर्सरी के अंदर एडमिशन लेता है, फिर 1 साल केजी में जाएगा, एंड देन देयर विल बी अ फर्स्ट, यू कैन से, क्लास. So this is the reason why government is saying that if you want to facilitate proper learning, पेरेंट्स अदरवाइज क्या करेंगे, बच्चे की एज कम रहेगी, इसको जल्दी से स्कूल में डाल दो. दैट अप्रोच डजंट वर्क, इट शुड नॉट बी लाइक दैट. सो गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑन दीज लाइन्स. क्लियर? न्यू एजुकेशन के पॉलिसी के हिसाब से इस तरीके से हम लोग चलते हैं, दैट वी वांट टू क्रिएट द ओवरऑल लर्निंग एंड द वेलबींग ऑफ द चिल्ड्रन. क्लियर है? दिस इज द मेजर पॉइंट हियर. तो ये सारी डिबेट है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड. नाउ लेट्स लुक इनटू द न्यूज़पेपर. अखबार में से देख लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं है. क्लियर? एक एक करके सब उठा लेंगे, कि कुछ रह गया हो तो वी विल बी डिस्कसिंग दोज थिंग्स. So Supreme Court refuses to stay EC order, we covered that. India remains a bright spot, we cover that as well. Okay, ये भी हमने कवर कर लिया, ये हमने कवर कर लिया. सिंथन टॉप, सिंथन पास, दिल्ली में इलेक्शन कंक्लूड हो गए मेयर के. ओके, सो डिस्प्यूट दैट वाज देयर, इट हैज बीन सेटल्ड बाय द कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने मामला सेटल कर दिया कि ऐसे नहीं चलेगा. क्लियर है? सो this news has been covered. Okay, that has been covered, this has been covered. Now there is this study regarding, basically CSDS ने स्टडी किया है कि लोगों के हिसाब से हेल्थ क्या उनकी प्रायोरिटी है कि नहीं. See, you need to understand one thing here. First of all, health is a state list subject. Clear है? ये तो हमें पता होना चाहिए. Other point is this, health and education, somehow they are interlinked, because if a person is educated, that person will be in a position to take care of himself or herself in a better way. If the mother is educated, she will be able to take care of herself and the children in a better way, and rest of the family members as well. So ये चीज इंटर होती है, और वुमेन एजुकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. So ये फैक्ट है, ये इंटर रिलेटेड चीजें हैं. बट the point is this, they are saying that health, is it a priority for the voter? क्या वोटर के लिए हेल्थ प्रायोरिटी है? Certainly not. Look at the voting pattern. Still you can say voting majorly is done in this country on the communal lines, but अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग
वो भी कम्युनल लाइंस के ऊपर वोटिंग कर रहे होते हैं। तो पोल्यूशन, हेल्थ, आई डाउट वेदर दिस इज अ मेजर इशू फॉर एनी, यू कैन से, फॉर for people, majority of the people in this country. Now other point is this, there has been a new trend that has been seen. एक नया ट्रेंड जरूर हमें देखने को मिला है. That new trend is this, that in Delhi, okay, when mohalla clinics were opened, जब मोहल्ला क्लिनिक्स खोले गए थे, like they were getting support from the people and people were happy with the working of those मोहल्ला clinics. तो वो एक नया डेवलपमेंट है जो हो रहा है स्पेसिफिकली इन द अर्बन सेंटर्स, एंड मेजरली इज दिस बिकॉज दिल्ली में पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं, तो एजुकेशन का यहाँ पे एक दोबारा लिंक आ गया. क्लियर? सो इन दिस वे ऑल दीज थिंग्स आर लिंक्ड हियर, आप उनको अलग से सेपरेट नहीं कर सकते, तो ये सारी चीजें लिंक्ड हैं. क्लियर है? नाउ वी हैव कवर्ड दिस. खिलाड़ी वाली न्यूज पढ़ ली, बुर्किना फासो पढ़ लिया, ओके, we have covered. Now India China hold in person border talks after 3 years. Okay, so these are some positive developments, थोड़ी बहुत positive developments हैं. It means we are hopeful that further, you can say, some of the issues will be resolved. कुछ हद तक फिर दोबारा वो वापस आएंगी forces, because they are also realizing it that there is no point in continuing the differences. क्या achieve करेगा चाइना? कुछ भी achieve नहीं करेगा. Clear? So this is the point here. Acha. So this is the major point. Who is responsible for healthcare in India, government or the individual? See, people, they expect government to provide services. Okay, लोगों की ये उम्मीद तो है कि सरकारी सर्विस होनी चाहिए, and somehow it is right as well, because globally if we see, outrightly you cannot just rely on the private sector कि आप सरकारी हॉस्पिटल सारे बंद करके बोलोगे कि सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल चलेंगे, वो मॉडल चलता नहीं है. It cannot sustain, and specifically in country like India, where paying capacity of the people, they are, you can say, inadequate. अच्छा, अब बात करेंगे इंश्योरेंस. हेल्थ इंश्योरेंस इंडिया में कितने लोग करवाते हैं? क्या हमारे यहाँ पे यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस आ गया है? क्या यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस हो गया है? आयुष्मान भारत, आप बोलोगे आयुष्मान भारत लेके आए मोदी जी. मैं कह रहा हूं आयुष्मान भारत के अंदर क्या 100% जो है लोग एनरोल्ड हो गए हैं उसके अंदर? सर्टेनली नॉट. तो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन ही नहीं है जब, स्टिल पीपल विल बी डिपेंडेंट ऑन द सरकारी सिस्टम. आप ये नहीं कह सकते ना कि सरकारी हॉस्पिटल सारे बंद कर देंगे और उसके बाद इंश्योरेंस के थ्रू जो भी खर्चा होगा इंश्योरेंस कंपनी दे देगी. हम ऐसा अरेंजमेंट करते हैं, ये चीज नहीं चल सकती यहाँ पे. क्लियर? वो यूएस में चल सकती है, इन इंडिया स्टिल इट इज नॉट पॉसिबल. So we have to be realistic about the present requirement here. Now Nagaland hopes to end long wait for first woman MLA in the state. Okay, see, you need to understand there was this controversy few years back, okay, that was related to implementation of provision of 1/3 रिजर्वेशन इन पंचायत. क्लियर? इन लोकल बॉडीज, कि लोकल बॉडीज में 1/3 जो है वो वुमेन की रिजर्वेशन होनी चाहिए. वी हैव दिस अरेंजमेंट. तो एक पिटीशन भी फाइल हुआ कि नागालैंड में ये लागू नहीं होता. नाउ मेजर पॉइंट दैट वाज रेज्ड, दे सेड दैट वी हैव आवर ट्रेडिशनल, यू कैन से, पंचायत, and as per the Naga tradition, only the male, they will be participant in that local tribal panchayat. कि पूरे ट्राइब के जो बड़े बुजुर्ग मर्द हैं वही आके डिसीजन लेते हैं, and women they don't participate in that. So this arrangement is there. ये arrangement है यहाँ पे. क्लियर है? अच्छा, अब वो जो उनकी जो बॉडी है, ट्रेडिशनल बॉडी, उसको बोलते हैं नागा हो. नागा हो. This is their tribal assembly. So they said that in our culture, women, they don't participate in these activities. Now it's an important thing that here that state is going to get their first woman representative, because after this you can think about facilitating 1/3 representation to women in the local bodies.
वो नेक्स्ट स्टेप जरूर हम यहां पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्लियर है जी? आगे बढ़ेंगे। सो मेजर थिंग्स हैव बीन कवर्ड, कुछ खास यहाँ पे आया नहीं है। ओके चलिए इंटरनेशनल पेज को देखते हैं। यहाँ पे Xi Jinping calls for China's self-reliance in technology among the growing competition. Okay, see, you need to understand one thing here. See, Communist Party of China, their document has already mentioned about the Chinese vision, what China is thinking and how they operate. So as per their document, China is still envisioned that they will invest in artificial intelligence, and then China is going to be a major exporter of AI in future. Not just AI, it is looking forward to export 5G as well. This is what their idea is about. So they are investing in future. Now we have to prepare ourselves for these developments. इंडिया को भी अब इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। हम कंपटीशन में रहने ही वाले हैं चाइना से। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम चाइना के साथ हमारा कंपटीशन खत्म हो जाएगा। We will be living like that. So Russia-China ties not aimed at other countries. This is what Wang Yi is saying. Okay, थोड़ा बहुत misconception चल रहा था इस चीज़ को लेके, because whenever they target United States, they said that US NATO बना रहा है, एशियन नेटो बना रहा है, क्वाड बना रहा है। क्यों? क्योंकि वो हमें टारगेट करना चाहता है, ऐसा बोलते थे ना वो। So now there was this thing in the news that okay, China and Russia, they are coming together. Primarily, like, this might be against the Europeans, against the Western powers. So that's why they were coming up with these statements here. Clear है? बाकी you already know the sad developments that are taking place in global politics. आज की डेट में global politics में चल क्या रहा है, ठीक है? So like Russia is saying that they are not going to obey all the treaties that they concluded with US regarding controlling the number of weapons, controlling the penetration of weapons. उन सब को कंट्रोल करने की बात अक्सर जो है रशिया पहले रखता था, अब वो कहते हैं कि हम इनको मानेंगे नहीं। ओके, सो इट्स अ सैड डेवलपमेंट। दोबारा आर्म्स रेस स्टार्ट होगी। वैसे देखिए, मैं आपको बता रहा था कि जो वॉरहेड डिलीवरी स्पीड की बात करते हैं, देखो कंट्रीज के पास आ गई हैं इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स और इंटरसेप्टर मिसाइल्स आर ऑल्सो देयर, एक दूसरे की मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकते हैं वो। सो दीज कंट्रीज वर ऑलरेडी इन्वेस्टिंग इन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ वॉरहेड डिलीवरी, कि मेरी मिसाइल की स्पीड इतनी तेज हो जाएगी कि कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा। कोई उसे पकड़ पाया, अगर रडार ने डिटेक्ट भी कर लिया तो उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। दे आर इन्वेस्टिंग इन दीज थिंग्स, दे आर इन्वेस्टिंग इन मल्टी वॉरहेड डिलीवरी सिस्टम, कि भी एक बड़ी मिसाइल होगी जो जाएगी, जो आगे मल्टीपल वॉरहेड्स लेके जाएगी, 5-6 एक साथ टारगेट कर सकते हो, 5-6 एरियाज यू कैन टारगेट इट साइमल्टेनियसली विद अ सिंगल यू कैन से मॉड्यूल, मिसाइल मॉड्यूल। सो दिस इज व्हाट दे आर इन्वेस्टिंग इन राइट नाउ। क्लियर है? नाउ राइजिंग हीट लाइकली टू इम्पैक्ट द व्हीट आउटपुट। सी, दिस इज व्हाट हैपेंड लास्ट ईयर एज वेल, पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। एंड लुक एट हाउ थिंग्स आर गोइंग एट प्रेजेंट। अब भी गर्मी ठीक ठाक हो रही है, ठीक है ना? सो व्हीट प्रोडक्टिविटी विल बी मेजरली इम्पैक्टेड, ऐसा बोला जा रहा है। एंड स्पेसिफिकली द फार्मर्स इन यूपी, दे विल फील द पिंच ऑफ इट। ओके, उनको काफ़ी नुकसान होने का डर है, प्रोडक्टिविटी डाउन होगी, डेफिनेटली फार्म इनकम विल बी लेस। फार्म इनकम कम होती है तो उसका नुकसान क्या होता है? द डिमांड इन द इकोनॉमी विल बी लेस। ओके, सो दिस इज हाउ थिंग्स आर इंटर रिलेटेड। आप किसी भी चीज़ को सेपरेट करके नहीं देख सकते हो। एंड मेजरली दिस इज व्हाट दे आर प्रेडिक्टिंग राइट नाउ, एंड इट इज एसोसिएटेड विद द क्लाइमेट चेंज। देयर इज नो डाउट कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ही हो रहा है, ये समझिए आप। दैट्स वाई इट शुड बी प्रायोरिटी, क्योंकि लाइक क्लाइमेट चेंज इज वेरी डेमोक्रेटिक, ठीक है ना? इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द रिच एज वेल एज द पुअर इक्वली। ओके, सो सबको अच्छे से एकदम क्लाइमेट चेंज देखता है, रिच कंट्री को भी इम्पैक्ट करेगा, पुअर को भी इम्पैक्ट करेगा। अच्छा, हीट वेव आ गई फ्रांस के अंदर, देखो फ्रांस के अंदर हीट वेव, लाइक पीपल दे वर यू कैन से हैविंग द सन स्ट्रोक पड़ रहा है लोगों को वहां पे, सोच सकते हो। ऑल दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस थिंग। अच्छा, देयर वर फ्लड्स इन यूएस, ड्रॉट पड़ गया तो ड्रॉट लंबा हो गया, फ्लड आ गई तो बहुत तेज ज़्यादा फ्लड आ गई। सो एट प्रेजेंट दिस इज द सिनेरियो दैट इज देयर। So this is what we have for today's session. So that's it for the day.
And guys, please do spread the name. Please do connect with us. We are coming up with more videos. We do have a channel for HCS. We do have a channel for PCS. We do have a channel for Himachal Pradesh Administrative Service as well. So please do spread the name if any of your friends and you yourself, they want to prepare for Haryana Civil Services, Himachal Administrative Services, or the Punjab Civil Services. So we do have a dedicated channel for that. Please do connect with us on those channels. We are regularly putting up the content there. And this is what we have for today's session. Thank you very much. Have a great day.